Good evening. Welcome. Namaskar. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And we are back with the Wednesday session. And the topic for today is Yog Vashisht Wisdom. And the subtopic is Niyati. So when we hear this word Niyati, what comes to your mind? First, let us look at the topic. Then we will do a quick recap of what all we have done so far, so that we have the background. And then we will... Destiny. Destiny. Okay, very good. Jyoti ji says destiny. Very good. And by the way, this is your understanding, so there is no right answer, there is no wrong answer. So, Niyati means destiny. Yes, very close synonym will be destiny. And any other words that comes across to your mind? Any other word which is coming to your mind? Anybody can share. Just shout out. The ultimate? Ultimate what? The ultimate truth. No, ultimate truth नहीं. Ultimate truth को जानने के लिए आपके लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही हैं, that is called niyati. Niyati is something which is destined. So destiny is a good explanation. Okay. So niyati means actually the life situations which are coming to you on day-to-day basis. ये नियति है. They are destined. बोलते हैं ना, भाग्य बोल सकते हैं उसे, luck बोल सकते हैं उसे. You get a lottery ticket. Now what is that? That is luck, but that is niyati, destiny. We can say karmic account. हाँ, ज्योति जी क्या बोल रहे हैं? कार्मिक अकाउंट. ज्योति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क शायद ठीक नहीं है. कार्मिक अकाउंट. कार्मिक अकाउंट मेरे को समझ में आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आया. बस मैंने यही बोला. हाँ, कार्मिक अकाउंट. आप थोड़ा सा रुक जाइए ज्योति जी. यू कैन शेयर आफ्टर अ बिट, आफ्टर सम टाइम व्हेन योर नेटवर्क इज फाइन. अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा. वॉइस इज क्रैकिंग. ठीक है. You can text in case you want to write down, but what I understood is you are saying karmic account, which is okay. तो कार्मिक अकाउंट के कारण ही लाइफ सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगे. So which is okay. So we can relate it to that. Yes. So anybody else who wants to share? What do you understand by niyati? Yes, Harshi. Pre-decided. Pre-decided. Okay. So we need to inquire into this a little. Pre-decided by whom? Divine. Okay. Pre-decided by divine. Okay. So that we will have to look into it. We will inquire into it. तो बहुत लोग ये मानते हैं, है ना, बहुत लोग ये मानते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है. इस संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता. वी हैव हर्ड दैट. भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता. इवन ए लीफ कैन नॉट मूव विदाउट द परमिशन ऑफ द डिवाइन. सो एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द डिवाइन, राइट. एंड उसी के आगे हम अगर बढ़ा दें आर्ग्यूमेंट, तो ये होगा कि अगर सब कुछ डिसाइडेड है भगवान के द्वारा, तो मुझे कर्म करने की जरूरत क्या है? If everything is already pre-decided, what is the fun of doing karma? It is all an eyewash. I am unnecessarily struggling to do karma. I will not do any karma and the things will happen. हाँ, बहुत लोगों का ये मत है. नहीं, पर भागवत गीता में तो पहला श्लोक ही यही है, कर्म करो. Yes. उसको ऐसा मेंशन नहीं है कि आप कर्म नहीं करिए. Good. Let us have the discussions on the understanding. So एक point of, you can say one point of view or one school of thought says everything is pre-decided by divine. So there is, whatever I do, it doesn't matter. Ultimately, whatever God decides has to be done. And another says कर्म करो, तब कर्मफल जो मिलेगा वो आपका भाग्य है. भाग्य कुछ नहीं है, कर्म का फल है. Which is also another truth which we have been hearing. We have been hearing that in the scriptures, right? So whether you call that niyati as destiny, luck, fate, भाग्य, जो भी आप बोलें, actual technical word जो है वो है प्रारब्ध. Whatever is coming to you as a life situation is a result of your कर्मा और पुरुषार्थ. अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो, पूर्व पुरुषार्थ की वजह से जो अभी सिचुएशंस बन रही हैं, जो प्रारब्ध आया है, वो लाइफ सिचुएशन है. So it is a result of your karmas, you can say, right? So it is not pre-decided
by the divine. It is pre-decided by your own karmas which you have done in the past lives or in the past of this life. उसके बेसिस पे ही इनफैक्ट आपकी जो जन्म कुंडली बनती है, हाँ, बहुत लोगों ने जन्म पत्री बनाई होगी अपनी, यस और नो? वो किसके बेसिस पे बनता है? वो प्रारब्ध के बेसिस पे बनता है कि ये सब कर्म करके आए हैं, तो इनका एक बर्थ चार्ट बनता है जो एक प्रारब्ध है, विच इज ए प्रेडिक्शन. नाउ इज दैट 100% श्योर टू हैपन? वी ऑल्सो नो 100% नहीं होता है. 50 to 60% might happen and 50 to 60% will change. Why is it changing then? अगर सब कुछ भगवान ने लिखा हुआ है, astrology is so powerful, right? You have to understand this is a prediction, and prediction can always be altered with your present karma. इसीलिए कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, पुरुषार्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है. जैसे आप पुरुषार्थ करोगे वैसे ही आपका कर्म फल बनेगा, वो आगे बन के आएगा. Correct? We will have more understanding on this, but right now we will keep this understanding. Let's have more discussion. Yes, Anirudh जी, आपने हैंड रेज किया था. Go ahead. सर मेरा एक पॉइंट, मैं कहीं तैयारी भी कर रहा था कि अभी बात हो रही थी कि सब गॉड करता है, उसके हाथ में ही सब कुछ है. तो कर्म तो चलो हमें कर्म करना है, कर्म के बाद कर्म करने से सब कुछ होगा. बट मेरे एक क्वेश्चन आ रहा था कि जब गॉड सब करने वाला, तो प्रे करने की क्या जरूरत है? वही तो बोलो, प्रे क्यों? कुछ भी कर्म करने की क्या जरूरत है? इट इज ऑलरेडी नहीं डेस्टिन्ड. नहीं, अपने कर्म तो करना है. प्रे की, जहाँ प्रे करने का मतलब है गॉड से मांगना. जब देने वाला बहुत है, उसके हाथ में सब कुछ है, वो ओमनी प्रेजेंट है, तो फिर हम प्रे क्यों करते हैं? बताइए आप, प्रे से क्या फायदा होगा? मैं यही यही नोट बना रहा हूँ, पिछले 1 घंटे से लगा हूँ. ठीक है, तो नोट करिए, हम आगे डिस्कशन करते हैं. वी विल सी व्हाट इज द पावर ऑफ प्रेयर, है ना? लेट्स सी हाउ वी डू दैट. Okay, very good. So good question. Everybody think about it. We will soon share that. So thank you Anirudh ji for bringing up that. Discussion करेंगे इस पे. और कोई point of view? तो नियति क्लियर है सबको? डेस्टिनी, लक, भाग्य, फेट, प्रारब्ध, you can call anything. All are same. Life situations which is coming to you on day-to-day basis, that is प्रारब्ध. That is your भाग्य बोल लो, कर्मफल बोल लो, जो मर्जी बोल लो. Yes, any other idea or interpretation of niyati? Sir, I have a very good explanation for Anirudh ji. नहीं, उनको एक्सप्लेन नहीं करना है अभी, आप अपना मत बताओ बस. ओके ओके फाइन. लाइक जैसे मैं एक बॉडी हूँ, एंड मैं कुछ भी खा रही हूँ, वो मेरी बॉडी में जाके कौन से पार्ट को क्या इफेक्ट कर रहा है, वो उसकी नियति है. इसकी नीति है खाने की, बॉडी की खाने की या आपकी? नहीं, मेरी नियति है ना. हाँ, कि अगर मैं गलत खाना खा रही हूँ तो वो Yes. किसी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है. राइट. तो वो You drink मैंने कर्म, poison. जैसे मैंने कर्म किया, तो वो बॉडी के पार्ट को वैसा इफेक्ट कर रहा है. अगर बिल्कुल मैं सही. सैलेड खाऊंगी तो सैलेड की तरह इफेक्ट करेगा. अगर मैं कुछ तामसिक खाऊंगी तो उस तरह से इफेक्ट करेगा. तो वो बिल्कुल कर्म पे इफेक्ट करेगा. बिल्कुल डायरेक्ट है, ये तो तुरंत मिल जाएगा आपको, अगले जन्म तक वेट करने की जरूरत नहीं है. Unless you drink जी. poison, या then you will have see the effect next time, next lifetime, because this lifetime will be over. पॉइजन खाते ही मर जाओगे आप, तो उसका इफेक्ट आपको अगले जन्म में दिखेगा. राइट. बट यस, यू पॉइंट टेकन. हम कुछ खाते हैं, वो तुरंत हमारी बॉडी में असर करता है. सो द रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्शन टेकन. तो एक्शन एंड रिजल्ट सिंपल है. पुरुषार्थ लीडिंग टू प्रारब्ध. गुड अंडरस्टैंडिंग गुंजन जी, वेरी गुड. लेट्स एक्नॉलेज गुंजन जी एंड ऑफ कोर्स अनिरुद्ध जी. लेट्स एक्नॉलेज. यस, गुड. और कोई पॉइंट ऑफ व्यू? और कोई पॉइंट ऑफ व्यू? And before we move ahead, let us have a quick recap of what all we have done so far. The Yog Vashisht wisdom starts with the discussion between the Brahmarishi Vashisht and the Prince Ram, who is possibly around 14 years that time. And though he is an avatar in making, अभी अवतार बने नहीं है, हाँ, but माइंड अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि ब्रह्म ज्ञान को, जो बेसिकली वो सब जानते हैं, लेकिन अभी वो रियलाइज करके एक्सप्रेशन ऑफ एक्शन में एक्सप्रेशन नहीं आए. दैट इज वाई Brahmarshi Vashisht has having known that he is the one who is the chosen one, he is the avatar. So he is giving him the Brahmagyan right at that age, so that later on he can do his Purusharth absolutely perfect. So that is the whole context of the discussion, correct?
एंड उनका क्वेश्चन भी ऐसे ही शुरू होता है कि इफ देयर इज सो मच ऑफ सफरिंग एंड मिजरी इन लाइफ, देन टेल मी अ वे how I can be free from this suffering and misery, either by renouncing the world or by living in the world and finding a solution. So that is the whole context of this Yoga Vasishtha wisdom, where he says that you have to live in this world, not run away or not give up the world, but live in this world and move on the path of spirituality, which will give you the ultimate freedom from suffering and misery. And ये सब अज्ञान की वजह से है, तो हाईएस्ट जो है वो ज्ञान है, ज्ञान से आपका सफरिंग और मिजरी खत्म हो। दैट इज अ बेसिक पॉइंट। एंड उन्होंने ये भी बताया उसमें जो हमने कवर किया था कि दान, देन तीर्थ और तप, ये फाउंडेशन है। अल्टीमेटली इफ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम सफरिंग एंड मिजरी, इट हैज टू बी द अल्टीमेट ट्रुथ, द अल्टीमेट विजडम। फॉर दैट ही सेड पुरुषार्थ is the foundation. Purusharth means what are you up to in this lifetime. आपके कर्म, आपका इंटेंशन, आपका इमोशन, आपका बैकग्राउंड जो आपको एक्शन के लिए प्रोत्साहित करता है, एंड ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंसेस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्शन एंड द रिजल्ट, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व एज ए पैकेज व्हेन वी टॉक ऑफ पुरुषार्थ। और उस पुरुषार्थ के उन्होंने उनको कुछ पिलर्स बताए थे जो हमने डिस्कस किए थे पिछले सेशन में। एवरीबडी रिमेंबर्स दैट वी आल्सो डिस्कस व्हाट आर आवर पिलर्स ऑफ पुरुषार्थ टुडे इन आवर लाइफ। एंड उनको बताया था स्वधर्म, राजधर्म, प्रतिज्ञा यानी कि वचन पालन, और त्याग। ये चार उनके रघुकुल के जो स्तंभ हैं उनको बताए थे। सो दीज आर द पिलर्स बेस्ड ऑन विच यू विल बी टेकिंग एक्शन. All your actions should be governed by this. This is what your ancestors have been laying down the foundation. So that is what he has taught. And we also saw what is the Purusharth ka hamare pillars kya hai. And we shared that. Like for me, I had said I have 5 pillars which I had created, which was Satya, Santosh, Sadhana, Satsang, and Seva. So I know this by heart. Now these are guiding my actions. Right? This is what we had discussed in the last session. Everybody clear on this? यहाँ तक का रिकैप कर दिया, so that people who are coming new will have some background. Now today we are going to look at when we are doing this Purusharth in the face of life situation, whatever be the life situation. That means whatever be the prarabdha. And prarabdha is nothing but the result of our old Purusharth. तो जो 2 जन्म पहले या 3 जन्म पहले मैंने जो पुरुषार्थ किया था वो ही प्रारब्ध बन के मेरे पास मेरे लाइफ में आ रहा है। तो उस लाइफ सिचुएशन में, उस सिचुएशन के सामने यानी कि इन फेस ऑफ दैट सिचुएशन, व्हाट विल आई डू नाउ? दैट इज पुरुषार्थ, प्रेजेंट पुरुषार्थ. दिस प्रेजेंट पुरुषार्थ विल टेक मी टू द नेक्स्ट लेवल. दैट मीन्स दिस विल कम बैक टू मी एज ए प्रारब्ध इन द फ्यूचर टाइम्स, मे बी इन दिस लाइफ टाइम, मे बी नेक्स्ट लाइफ टाइम, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ टाइम. क्लियर है? सो दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड so far. Today we are going to look at the prarabdha or the life situations they are coming in. What constitutes that? तो एक तो बड़ा सिंपल है कि मेरे जो कर्म है वही मेरा भाग्य बना रहे हैं. How many of you agree with it? मैं कर्म कर रहा हूँ वो मेरा भाग्य बना रहे हैं. जैसे अभी गुंजन जी ने कहा, मैंने अच्छा खाना खाया तो बॉडी को हेल्दी बनाएगा, मैंने पॉइजन खाया तो बॉडी को खत्म कर देगा. तो इमीडिएटली एक्शन एंड रिजल्ट. करेक्ट? तो पुरुषार्थ का एक प्रारब्ध आएगा. That can come immediately, that can come later on, but that is a way of our life. Clear? So this is one way of understanding कि मेरे कर्म ही मेरा भाग्य बना रहा है. I hope everybody agrees with it. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मेरा कर्म ही मेरा भाग्य बना रहा है. Correct? Now if you take it as a single input, single output, तब तो बड़ा सिंपल है. That means the whole world, उसका इनपुट क्या है? माई कर्म, और आउटपुट क्या है? माई डेस्टिनी. यानी कि प्रारब्ध पुरुषार्थ इनपुट हो गया और प्रारब्ध आउटपुट हो गया. ये तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट हो गया. बट आर वी लिविंग लाइक एन आइलैंड? आर वी लिविंग लाइक एन आइसोलेटेड आइलैंड? तब तो ये इक्वेशन बड़ी क्लियर है, मेरे कर्म मेरा भाग्य बना रहे हैं. बट वी ऑल नो वी आर ऑल कनेक्टेड. वी आर कनेक्टेड एक्चुअली to the whole universe.
Yes. So our karmas cannot be independent of others. Our karmas will affect others, and others' karmas will also affect us. Yes or no? Yes or no? Yes. So obviously, this equation is not as simple as we can see. So all the karmas of all the people who are in a karmic relationship with me will be impacted by my karma, and I will also be impacted by their karmas. This is called collective karma or collective consciousness. तो एक फैमिली का भी एक collective consciousness होगा. So when I'm born, when a soul takes a birth, तो किन पेरेंट्स के साथ वो पैदा हो रहा है, which city or which country he is taking birth, which parents he is born to, what is the surrounding, all this will be decided by the prarabdha. Some part of the prarabdha will be utilized to create this situation in which he is born. Yes, similarly the situation for death. So birth and death are 100% taken care by the prarabdha, where we don't have much say. It is only the in-between life that we have to take care. Yes. So like many people would know, date of birth है हमारा, जैसे मेरा है November 7, 1965 dash and some other date, that's a future date when I will be leaving this body. So this date and that date is fixed by the prarabdha. मैं कहाँ पैदा हुआ, किन पेरेंट्स के साथ पैदा हुआ, मेरे अपब्रिंगिंग के लिए जो सिचुएशन थी, मेरी एजुकेशन, all this will be the prarabdha. I have not taken any conscious decision. It is decided by my karmas, not by divine. By my past karmas, it is decided. Right? So prarabdha is always a projection of my past karmas. इसमें मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. डिपेंडिंग ऑन, जैसे मार्क्स के बेसिस पे किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, दैट इज समहाउ इट इज दैट, यू कैन रिलेट इट टू दैट. जितने मार्क्स आए हैं उसी हिसाब से आप क्वालिफाई करके उस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हो. तो जितना आपका कार्मिक अकाउंट होगा, जो आपका कर्मास होगा, उसके हिसाब से आपने एक जन्म आपका सिद्ध हो गया. राइट. एंड सिमिलरली मेनी अदर लाइफ सिचुएशंस, लाइक वेयर यू, हाउ मच इज योर एजुकेशन, how much is your, when are you going to get married, to whom you are going to get married, and your job, your career. एक blueprint जरूर होगा जो प्रारब्ध से बनता है. That is why astrology is so powerful. It can give you a guidelines of how your prarabdha is supposed to run in this lifetime. Everybody okay with this description so far? If you have any disconnect, you need to ask. ठीक है? Yes, Gunjan, you want to say something? Go ahead. यस सर, एस्ट्रोलॉजी में मेरा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं देखती रहती हूँ. एंड मैंने अपनी ही फैमिली के बारे में देखा है सारों का. तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट, एंड नाउ आई हैव सीन दैट वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड इन सम वे और द अदर. So I do believe in it that there is some past life karmas attached to each other. Obviously, otherwise how will you draw the astrological predictions? Past lives karma के basis पे ही वो predictions बने हैं जो इस life को govern करेंगे. And we know 99% of the population will not be able to change their karma, so prediction will most likely be true. Yeah. But the 1% who can change this with their purusharth, who are on the way of spiritual journey and they can transform their life, उनके लिए वो results valid नहीं होंगे. Yes, sir. Get my point? So astrology is a prediction. Prarabdha is a prediction which is done at the time of birth in the form of the birth chart. Nothing wrong with it. It is a perfect science. Only thing is, it is a prediction. You have to work to make it happen, and you have to work to improve it, or you have to work to even take it down the level. ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. Depends on your. इसके ऊपर एक और मेरी बात है. मैं देखती हूँ अपना चार्ट जैसे, तो उसमें कुछ भी जो नेगेटिव होता है तो मैं आई कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, एंड जो पॉजिटिव होता है मैं उसको ले लेती हूँ. मैं कहती हूँ ओके फाइन, दिस इज माय डेस्टिनी. Good. So you created your destiny, and you can change your destiny with your present karma. yeah. Present karma at So any I point of time I will take be it more as a powerful. guiding line. I take it as a guiding line. गुंजन जी समझ गया. मैं औरों को तो बता दूं. हाँ. So your present karma at any point of time will be more powerful than your old karma's results. जो कर्म आपने 2 जन्म पहले किए हैं,
उसकी पावर इतनी नहीं है जो आप आज कर रहे हो। क्यों? यू आर मोर इवॉल्व टुडे देन यू वर टू बर्थ टाइम बिफोर, 2 lifetimes before. Whatever your evolution was, you are most likely at a better evolution stage than that lifetime. तो आपके आज के कर्म जो हैं वो 2 लाइफ टाइम पुराने लाइफ टाइम कर्म से अच्छे होंगे। तो टुडे यू आर मोर पावरफुल देन यू वर बिफोर। तो आप जो प्रारब्ध आया है, जो मर्जी प्रारब्ध आया हो, यू आर मोर केपेबल ऑफ, यू आर एबल और यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट मच बेटर, वट एवर बी द सिचुएशन। दैट शुड बी द, that should be your willpower that come on, जो भी लाइफ में आ रहा आने दो, आई विल हैंडल इट, बिकॉज मेरे ही कर्म है जो आए हैं पलट के, आई एम रेडी फॉर इट। यस, दैट शुड बी योर अप्रोच Yes, ऑफ लाइफ एंड देन एवरीथिंग yes. विल बी फाइन। यस, ओके गुंजन जी, थैंक यू फॉर दैट। ओके, गुड, लेट्स एक्नॉलेज गुंजन। ऑलराइट, एनीबडी एल्स who has some questions or not clear about it? क्लियर है? या अमित जी बोलिए। Yeah, maybe I just one question cropped up right now when you mentioned that today definitely we are at a better situation in terms of our karmas and we are more conscious or evolved. Uh, is it also possible that somebody starts to do a lot of negative karmas in this life or for a few years, and maybe in this life itself, in the later stages or in the next lives, he can actually go down spiritually and he may go down in the journey, go into minus, and then whatever happens next will happen. You got my Yes, question? possible. Yes, possible. Yeah. Actually, you have to understand So it it's this way. In no lifetime, you will be exhausting all the tamas sanskars, tamasic sanskars, or the rajasic sanskars, all the sattvic sanskars. So you come with a blueprint when a soul takes a birth. It comes with a blueprint कि इस जन्म में मेरे को 5 सात्विक क्वालिटीज एक्सपीरियंस करने हैं, 5 राजसिक और 5 तामसिक। उसका ऑर्डर कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन the karma where you are born. So that's why you will find that somebody who is done excellently brilliant karmas in the past will be born maybe in a very luxurious kind of a family. Could be Ambani's or Adani's or Bachchan family, correct? Or Tendulkar family, whatever. So उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उनका बर्थ वहां पे हुआ, right? And they will be born with a silver spoon in their mouth, but that doesn't mean that they're going to live continuously like that. If they do good karmas, they will rise further. If they do bad karmas, they can come down. We have seen that, right? They can become drug addicts and they can fall into a, criminal cases, go to jail. बहुत कुछ हो सकता है। बहुत अमीर फैमिली में पैदा होने के बाद भी ड्रग्स के चक्कर में पड़ गए, and maybe loosely I can say case of maybe Sanjay Dutt, he went to jail and all that. He had an absolutely great family when he was born, right? Golden spoon was in his mouth, and then still his karmas took him to all the depths. But that doesn't mean your consciousness has not evolved. आपने पहले सात्विक ऑब्जर्व कर लिया, पहले राजसिक कर लिया, उसके बाद तामसिक में आए और फिर वापस मुड़ के फिर सात्विक में आ सकते हो। और हर लाइफ टाइम में ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो जब तामसिक में होंगे, you have to exhaust that sanskars, no? You have to experience it and then go beyond it. So that combination will be decided by the soul itself on the journey, right? But it is always that wisdom that we should have, that we are always moving forward in the spiritual journey, which will help us to overcome any situation. तो अगर गलती हो गई है, okay, fine, we are human beings, we can slip. Pick yourself up and start moving ahead. गलती हो गई, कोई बात नहीं, now I will improve your karmas and move ahead. That is your purusharth, and you will change your results and you will change your destiny. Many cases, people have been born in slums, very, you can say, survival kind of a background, and they have studied under street lights and then gone ahead and become IAS, IPS. वो struggle जरूरी था. Even avatars, you can say that. Shri Krishna was born in a prison. Yes. Shri Ram had to go for a vanvas for 14 years. All this is prarabdha, right? And when you are going through your karmas, you will also impact the karmas of your or prarabdha of your family members. Yes or no? तो जब आप
जब सोल बर्थ लेता है एक फैमिली में, इमीडिएटली कौन कौन सी फैमिली के साथ, कर्मा के साथ कनेक्ट होगा? पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। योर कर्मा इज कंबाइंड, सो फैमिली कर्मा इज ए combination of 5 people or 6 people. The society karma is a combination of maybe 100 people. Similarly, we have the city karma, you can say city consciousness or the state consciousness or the country consciousness. Yes. So you are never living alone like a isolated island. You are always connected. So your karmas are not a single input, single output. It's multiple input, processing, and then multiple output. So you can't really single out कि ये मेरे साथ जो हुआ लाइफ में, ये किस किस के कर्म इन्वॉल्व है, बहुत लोगों के कर्म इन्वॉल्व है। लेटर ऑन व्हेन यू ग्रो अप व्हाट हैपेंस, पेरेंट्स के साथ हो सकता है कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है कार्मिक का, दे मूव ऑन देयर स्पिरिचुअल जर्नी, दे लीव द बॉडी एंड गो। सिबलिंग्स अलग अलग हो जाते हैं, नाउ यू आर इन अ कार्मिक फैमिली ऑफ योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन, वो आपका कार्मिक अकाउंट उनके साथ बनेगा, राइट। सो व्हेन श्री राम वेंट टू एक्साइल, कितने लोगों के कर्मास इन्वॉल्व थे? लक्ष्मण जी के थे, सीता जी के थे, दशरथ तो lost his life, his father, right? All the mothers were in distress, brothers were in distress, so everybody was impacted by it. तो अपनी नियति जो बनी उनकी एग्जाइल की, that impacted a lot of people, and their karmas also impacted him. He went to exile because of Manthara and Kaikeyi, you can say that, or Dasharath. Otherwise he was to be crowned the prince. वो युवराज बनने वाले थे एक दिन बाद, and he had to go to exile. Destiny. Now that destiny is depending on karmas of many other people, not only his karmas, but he is there as a purpose. Whatever is the life situation, उसमें आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो, अपना बेस्ट पुरुषार्थ दिखाओ और फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ. That is the lesson that we need to learn. Yes, so ponder about it. Let's have some sharings. Yes, Anirudh ji, go ahead. सर ये अभी बात जो मैंने समझा कि कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे अभी हम कोई पर्सन जो गलत काम करे और करता रहे, ये कहे कि अगले जन्म में वो स्पिरिचुअल हो जाएगा तो उसको ठीक कर लेगा, ये तो यही बात कर रहे हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा कि अभी ऐसा जानबूझ कुछ के नहीं। कोई भी गलत नहीं करते. रावण ने भी जो किया था उसको लगा था वो ठीक कर रहा है. नहीं, वो तो ठीक कर रहा है. कोई आदमी इस समय कोई गलत काम करे, वाइसिस करे, कहता है कोई बात नहीं, इस जन्म में करता हूँ, अगले जन्म में स्पिरिचुअल करके उसको मैं एडजस्ट कर लूंगा. ये विजडम डिस्टॉर्टेड है ना सर, डिस्टोर्टेड है. क्योंकि वो वही कर रहा है जो उसके लिए सही है. वो ये गलत है बोलेगा ही नहीं ना. वो कहेगा अगर मैं लोगों का छीन रहा हूँ, मेरा हक है. वो इसीलिए आए हैं कि मेरे को सर्व करें, तो मेरा हक है उनसे छीनना. सर मैं इसमें ये है कि अगर वो छीन रहा है और ये समझ के छीन रहा है कि इस जन्म में तो छीन कर मैं काम करता हूँ, अगले जन्म में मैं इसको वो कर लूंगा, मैनेज कर सर लूंगा. समझिए, जो छीन के खा रहा है वो ये मान रहा है कि ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है. जो करप्शन कर रहा है वो ये मान रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये चाहिए और ये ठीक है. कोई ठीक है. जानबूझ के गलत नहीं करता. इवन टेररिस्ट व्हेन दे आर ब्लास्टिंग बॉम्ब, दे थिंक दे आर डूइंग राइट थिंग्स. कोई अपनी कॉन्शियसनेस में गलत मान के नहीं चलता है. वो तो बाद में पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा ना कि करेक्ट था या नहीं था. इतनी अगर अवेयरनेस होगी तो हम तामसिक कर्म करेंगे ही नहीं ना. करेक्ट. अगर कोई ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे है तो वो तामसिक को पहले ही माफ कर देगा ना, हाथ जोड़ के कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं ये नहीं करने वाला कर्म. सर मैं Get my कुछ कह सकती हूँ इसमें? एक सेकंड होल्ड करिए, पहले मैं कोई जवाब देने दूँ उनको. तो अनिरुद्ध जी क्लियर हुआ? हाँ. अपनी अपनी अपने रेल्म में हर कोई ही सही काम ही कर रहा है. ओके, बट देन द कॉन्सिक्वेंसेस ही विल हैव टू बियर फॉर एवरी एक्शन. अगर वो एक्शन ए ले रहा है और कॉन्सिक्वेंस बी है तो कॉन्सिक्वेंस बी आना ही है. सर इसमें कुछ लोग काम करते हैं और उनको पता होता है कि वो गलत काम कर रहे हैं. हाँ, तो ऐसा फिर भी होता है. अगर होता है, आप सोच रहे हैं गलत है, उनकी नजर से पूछिए, मेरे ख्याल से वो कहेंगे ये सही है. नहीं, कहीं अब उनकी एक नजर से एग्जांपल दे उनको दीजिए, एक एग्जांपल दे दीजिए जिसने किया था और वो मान गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ, तब वो रिपेंट करेगा, अपना रास्ता बदल देगा. वो जाग गया है ना. फिर तामसिक लोग सो रहे हैं, वो सुप्त अवस्था में है, उनको नहीं मालूम है क्या सही है क्या गलत है. Example of Okay. Duryodhan, he never knew that he was doing something wrong. He thought it is his birthright. मैं राजा का बेटा हूँ तो मेरे को सब कुछ मिलना चाहिए.
उनको जंगल में जाना चाहिए, वनवास में जाओ तुम लोग, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, ओके। तो ही इज राइट इन हिज वर्ड, ही इज एब्सोल्युटली राइट। यही प्रॉब्लम है, व्हेन यू आर राइट यू आर कंप्लीटली इन एन ईगो ट्रिप बिकॉज अदर्स आर रॉन्ग। अगर मैं सही हूँ तो बाकी सब गलत है ना, जो मेरे साथ नहीं है। तो दुर्योधन को लगा सिर्फ कर्ण सही है, शकुनी सही है, धृतराष्ट्र सही है, बाकी सब गलत है जो उसके अगेंस्ट है। अंडरस्टैंड? वो धर्म अधर्म की बात नहीं हो रही, जो मेरे को सही लगा और जो मेरे को सपोर्ट करते हैं वो सही है। वो तो बाद में इन द कॉन्टेक्स्ट बाद में पता चलेगा ना वो क्या था क्या नहीं था। बट वट एवर एक्शन यू टेक यू विल हैव ए कॉन्सिक्वेंस, ये क्लियर है ना? दैट इज वॉट यू नीड टू लुक एट। हर पुरुषार्थ का एक प्रारब्ध होगा और वो मिलना ही है आपको, उससे नहीं बच सकते। यस, तो इज दैट आंसर गुड इनफ अनिरुद्ध जी? ओके। या और ठीक है अमित जी ठीक। क्लियर है ना? पूरे ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे लाइफ में सारे सात्विक खत्म कर दो या पूरे तामसिक खत्म कर दो या पूरे राजसिक खत्म कर दो। इट विल बी ए कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन किसी भी लाइफ स्टेज के किसी भी सिचुएशन में वो संस्कार एक्टिव हो जाएंगे, वो एक्सपीरियंस आएंगे, और वो एक्सपीरियंस जब जब आएंगे आप उसको उस सिचुएशन के सामने आप जो भी पुरुषार्थ करेंगे वैसा आपका प्रारब्ध बनता रहेगा। एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट योर डेस्टिनी। यस, सो द प्लेस वेयर यू आर born, to whom parents whom to you are born, your education, your married life, and your death, all this is broadly as a blueprint decided by the prarabdha. But can you change your prarabdha? Obviously yes, क्योंकि भगवान ने नहीं लिखा है, आपके कर्मों ने ही लिखा है। अब मैं वो चीज बताता हूँ जिससे कि अक्सर लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि भगवान की मर्जी से सब कुछ चल रहा है तो कर्म करने की जरूरत क्या है या प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। गॉड नोज एवरीथिंग, God knows everything, yes, God can see everything, but only thing is he doesn't do anything, he does only one thing, तथास्तु। करेक्ट? ये है डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग, ये है भगवान की मर्जी। तो भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, और उस नियम में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है, गुरु कृपा बोल लीजिए, प्रभु कृपा बोल लीजिए, बाई सेइंग तथास्तु। ही गिव्स अ तथास्तु एंड दैट इज द डिवाइन ग्रेस। तो जब आप प्रेयर करते हैं आपको तथास्तु मिल रहा है, वो जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। जब आप कोई एक्शन कर रहे हैं एंड यू are in full gratitude to the divine, you will get a tathastu very easily and then the results will come. तो आपके पुरुषार्थ के साथ भगवान का तथास्तु बहुत जरूरी है, वरना वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। दैट इज वाई प्रेयर इज इंपॉर्टेंट। पुरुषार्थ तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन जब तक भगवान का तथास्तु नहीं मिलेगा वो मैनिफेस्ट नहीं होगा लाइफ में। दैट इज द पावर ऑफ प्रेयर, पावर ऑफ एफर्मेशन, वी ऑल नो दिस। यस, Yes. एंड दैट आंसर्स अनिरुद्ध जी आपका सवाल जो आपने पूछा था, प्रेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रेयर का इंपॉर्टेंस ये है कि भगवान से तथास्तु लेना जरूरी है। आपके हर डिजायर में, आपके हर थॉट में यू आर सेंडिंग ए डिजायर टू द गॉड और टू द यूनिवर्स, एंड द यूनिवर्स विल ओनली रिप्लाई बाय तथास्तु। तो अगर आपका डिजर्विंग लेवल है तो वो डिजायर पूरी होगी, अगर डिजर्विंग लेवल कम है तो वो डिजायर पूरी नहीं होगी। तो आपको अपनी साधना सेवा सत्संग से अपने डिजर्विंग लेवल को बढ़ाना है। दैट इज हाउ यू विल इंप्रूव योर पुरुषार्थ। मेकिंग सेंस? इसमें मेरा हाँ एक जी, बोलिए बोलिए, क्या हो गया? चलिए आ जाएंगे वापस, शायद फ्रीज हो गए थे। ओके, सो एनीबडी सर, एल्स मैं कुछ हु? कह सकती हूँ? हाँ, यस यस गुंजन, गो अहेड। सॉरी आई स्टॉप्ड यू देयर। अभी नो नो दैट्स ओके, दैट्स गो अहेड। ओके। अभी थोड़े दिन पहले की बात ही है, मेरे एक अंकल हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर है। तो उन्होंने कहा मुझे कि काफी तेरा और मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मिलता है, तो पर तुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, पर मुझे नहीं वो मिल रहा। तो तुझे कैसे मिल रहा है, तू क्या ऐसा ऐसी युक्ति लगा रही है? तो मैंने कहा मैं तो डिवाइन को प्रेयर करती हूँ एंड नहीं, उसको जवाब क्या अपने देना था तुमने? कर्मों उसको जवाब देना था मैं डीएचपी में हूँ, तुम डीएचपी के बाहर हो। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि तेरे साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है पर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने कहा आपने अहम ब्रह्मास्मि को जरा गलत वे में ले लिया। एनीवे तो दैट्स मैंने फाइन। नहीं लिया।
Yeah, so that explains the point that we were discussing. Yes, Gunjan ji, Yeah. thank you for making it, and that was only for humor that I said that. Yeah. So anyway, you can always invite him to DHV. Let's acknowledge Gunjan ji. Yeah. Yeah, very good. Yeah. Thank you. Yes, so all your prayers and all your efforts, all your purusharth has to, it is a must. It must get that tathastu from the divine. इसीलिए अपने आप को कभी कर्ता नहीं समझना चाहिए. कर्म करो, रिजल्ट्स डिवाइन पे छोड़ो. That's why we say divine will be done. We say divine magic be done. Correct? तो तथास्तु भी ले रहे हैं हम. बहुत से अप्रूवल मिल गया, थप्पा मिल गया तथास्तु का. Now it will manifest in your life. Now it's a question of deserving level. अगर अभी डिजर्विंग लेवल पे हो तो वो डिजायर इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो जाएगी. अगर डिजर्विंग लेवल पे नहीं हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. थोड़ा सा टाइम मीन्स मे बी 5 साल, मे बी 5 मिनट, 5 साल या 5 जन्म, डिपेंड्स. आपकी साधना, आपकी सेवा, आपका सत्संग, आपकी कॉन्शियसनेस को कितनी जल्दी ऊपर लेके जाता है. जैसे जैसे आप अपनी डिजर्विंग लेवल को बढ़ाएंगे, आपके डिजायर्स मैनिफेस्ट होने ही होने हैं. हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन दैट? Leave your attachment to your desire and have full faith in the divine, surrender to the divine, pray to the divine, and the desires will start manifesting like magic. Yes? Okay, very good. Yes, Anirudh ji, you're back. आप कुछ बोल रहे थे? यस, हाँ जी, मेरा उसमें नेट में प्रॉब्लम आ रही थी. तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो डिवाइन है वो इसका मतलब वो चाहता है कि लोग प्रे करें उसकी? डिवाइन सबसे पहले कोई एंटिटी नहीं है सर. वो चाहने से बहुत दूर है. वो निर्गुण है, निराकार है. उसमें कोई मान गुण नहीं लिया है. जो भी है, फॉर्मलेस है, जो भी है, तो वो लोगों से चाहता है कि लोग उसकी प्रे करें. जब उसके पास सब पावर है, वो सब कुछ करने वाला है, तो प्रे कर तो वो ये चाहता है कि लोग काम करें, एफर्ट्स करें. वो तो है, ठीक है, एफर्ट्स करने चाहिए. परंतु वो चाहेगा कि मेरी चमचागिरी, मतलब वो मुझे मेरी प्रे कर, सर वो मेरी बॉस फ्लैटर नहीं कर. है, वो कोई इंसान नहीं है. उसमें कोई डिजायर नहीं है. गॉड को प्लीज करने की जरूरत नहीं है. तो फिर हम प्रे क्यों करते हैं फिर, जब उसको प्लीज करने की जरूरत नहीं है? अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स को क्रिएट किया भगवान ने और यूनिवर्सल लॉज बनाए हैं. उनका काम सिर्फ अप्रूवल देना है. अप्रूवल का ठीक है. मतलब क्या है? तथास्तु. राक्षस भी अगर तपस्या करते हैं तो उनको तथास्तु बोल के वरदान देते थे. ऋषि मुनि भी करते थे तो उनको भी तथास्तु बोलते थे. दे आर हाईली इम्पार्शियल, कंप्लीटली इम्पार्शियल हैं. राइट. यूनिवर्सल लॉज आर कंप्लीटली इम्पार्शियल लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो फिर वो प्रे करना क्यों चाहता है? हम प्रे क्यों करते हैं फिर जब वो इम्पार्शियल है? तो मैंने क्या बोला है सर अभी? आप प्रे इसलिए कर रहे हो ताकि आप भगवान से तथास्तु ले सको, ताकि यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको वो दे सके. बगैर प्रे के वो तदस्तु नहीं करेगा, बिना नहीं दे. ग्रेटिट्यूड के, प्रेयर का हाईएस्ट फॉर्म ग्रेटिट्यूड है. इफ यू आर नॉट ग्रेटिट्यूड यू विल बी इन ईगो. ईगो से आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. यू विल ओनली डिस्ट्रॉय. क्रिएटिविटी के लिए आपको डिवाइन से ग्रेटिट्यूड में रहना जरूरी है. डिवाइन बाहर नहीं है सर, डिवाइन आपके अंदर ही है. अभी आप थोड़ा सा रुकिए. लेट मी हियर व्हाट संजीव इज कीन टू से एंड देन वी विल पिक इट अप. ठीक है जी? हाँ, यस संजीव, गो अहेड. तो अनिरुद्ध जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है. उसको आई विल पुट इट इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर. आप फादर हो और आपके घर में 3 बच्चे हैं. आपके पास देने की पूरी शक्ति है, आपके पास अनलिमिटेड चीजें हैं. आप किसको दोगे? जो मांगेगा, जैसा मांगेगा, जिस तरह से मांगेगा, जिस इंटेंशन से मांगेगा, वो उसके मांगने पे डिपेंड करेगा. लेकिन आपके पास पावर पूरी है. तो वो इसको मैं जस्ट सिंपल तरीके से इस तरह से समझता हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग. मैं खाली कहना चाहता हूँ, तो जो सुप्रीम गॉड है उसने इंसान को एक चीज दी है जिसको बोलते हैं हम फ्री विल. वो फ्री विल की एक्सरसाइज करने की पावर इंसान को ही दी हुई है. और वो बोलते हैं इंसान को, आप फ्री विल प्रैक्टिस करो एंड कम टू मी. आई एम अवेलेबल. मेरे पास सब कुछ है अबंडेंस में. आप जो चाहो ले सकते हो, बट आपकी इंटेंशन, आपके एक्शंस और आपके बिहेवियर उसमें अलाइन होने चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील. एंड देन अकॉर्डिंगली, जैसे एक फादर, एक पेरेंट अपने बच्चों को इन चीजों के मिक्सचर के हिसाब से देते हैं, गॉड उस हिसाब से तथास्तु बोल देते हैं. दैट्स अ स्मॉल थिंग, शशि, आई फील. दैट्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. यस, वेरी गुड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. थैंक यू.
लेट्स एक्नॉलेज संजीव। सो अनिरुद्ध जी, क्लियर हुआ या कुछ और सवाल है? रिफ्रेम करिए। मैं इसमें मेरे को क्वेश्चन ये है कि जब वो इन्होंने बताया कि 3 बच्चे हैं, एक मांगता है दूसरा नहीं मांगता, परंतु गॉड तो इम्पार्शियल है, वो तो सबके लिए बराबर है, वो तो तीनों बच्चे उसके लिए एक जैसे हैं, चाहे वो मांगे ना मांगे, बिल्कुल है, तीनों बराबर है। तीनों को फ्री विल दी हुई है। अब जैसे एक बोलता है, जैसे फादर है, ठीक है जी, तो सन आया, पहला सन आया, पापा पापा मैं सीढ़ियों से उतर के जाऊंगा, तथास्तु, चला गया सीढ़ियों से, सेफ है। दूसरा कहता पापा पापा मैं बालकनी से कूदूंगा, तथास्तु, जाओ, वो बालकनी से कूद गया, वो हॉस्पिटल पहुंच गया। तीसरा कहता पापा पापा मैं पॉइजन पीऊंगा, तथास्तु। पापा का काम सिर्फ तथास्तु बोलना है। आप समझ गए? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ फ्रीज तो जी, नहीं हो गया? हाँ जी, नहीं, ठीक है ना? हाँ, समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो बस उस फादर का यही काम है। ऐसे व्हेन वी आर ए फादर वी विल थिंक लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज हम जीव हैं, हम गुणों से भरे हुए हैं, हम पार्शियल हैं, करेक्ट। लेकिन वो इम्पार्शियल है, वो निर्गुण है, निराकार है, उनका काम सिर्फ तथास्तु बोलना है। आप जो भी डिजायर करेंगे तथास्तु, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैं छोटा हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, तथास्तु, बर्बाद हो जाओगे। आप क्या मांग रहे हो, ध्यान से मांगो, आपको तथास्तु मिलता रहेगा, क्योंकि डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर विथ यू। आप क्या मांग रहे हो? हे भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सुसाइड करूंगा, पंखा कहाँ है? लटक जाओ, तथास्तु, लटक जाओ। ये प्रॉब्लम, फ्री विल दिया हुआ है ना आपको, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब आप क्या चाहते हो, आपका पुरुषार्थ है। बी वेरी क्लियर, मेरी जर्नी कहाँ जा रही है, मेरे को क्या कर्म करने हैं। फुल अवेयरनेस के साथ, फ्री विल के साथ, जब सही कर्म चूज करोगे तो सही डेस्टिनी बनेगी। अनिरुद्ध जी, कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो इसी कॉन्टेक्स्ट से आगे बढ़िए। ये एग्जाम्पल ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि फादर जब हम विजुअलाइज करते हैं, हम अपने आप को फादर मान ले, तो मैं तो इम्पार्शियल हूँ भाई, सीधी सी बात है। मैं पड़ोस के बच्चों को मैं इसको ये ना ऐसे दूँ, मैं अपने बच्चों को तो दूंगा, मैं इम्पार्शियल हूँ। मैं इसको मैं इसको ऐसे समझा हूँ कि जब हम कोई प्रे करते हैं, अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, तो जो प्रे करते हैं वो वही देगा जो हम प्रे करते हैं। उससे ज़्यादा भी मिल सकता है आपको, डिवाइन ग्रेस एंड उससे ब्लेसिंग्स की ज्यादा भी मिल जरूरत है। सकता है, उससे कम भी मिल सकता है, बिल्कुल, जो डिजर्विंग लेवल है आपका, है ना? और प्रे अब ना जैसे भी आप करें बोल तो भी। सकते हैं मेरे को 100 करोड़ मिल जाए, हे भगवान मुझे 100 करोड़ मिल जाए, आपकी डिजर्विंग लेवल है अभी 1 लाख की, तो आपको 1 लाख ही मिलेगा ना। अब आप अपनी और काबिलियत बढ़ाओ, और कामयाबी चाहिए तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। अगर प्रे ना भी करें तो भी मिल जाएगा। सर समझिए, हर एफर्ट के साथ डिवाइन में कंट्रीब्यूशन जरूरी है। डिवाइन का तथास्तु लिए बिना नहीं चलेगा। आप ये मान के चले ना, कॉर्पोरेट आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं, बहुत से साइन होंगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी ना। आप एप्लीकेशंस देते रहिए, बहुत साइन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कुछ नहीं होगा ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ के देखिए, आपको साइन चाहिए और उनका काम है साइन करना। तथास्तु मीन्स अ साइन। मांगो तो सही, खुल के मांगो ना, वो परम पिता हैं, आपके पिता हैं, खुल के मांगो, कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। वो तथास्तु देंगे, और आप जब डिजर्विंग लेवल पे पहुंचेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए बोला गया ना, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलने के लिए जुट जाती है। क्यों? भगवान का तथास्तु मिल गया शिद्दत के साथ। जब वो शिद्दत से किसी चीज को चाहोगे, भगवान का तथास्तु मिल गया, अब वो आपकी लाइफ टाइम में आ जाएगा, इस लाइफ टाइम में या अगले लाइफ टाइम में, जब भी आप डिजर्विंग बनोगे। जैसे मूवी में देखा था हमने, ओम मखीजा को कुछ नहीं मिला, लेकिन ओम कपूर को सब कुछ मिल गया, राइट? ओम शांति ओम मूवी, राइट? तो यू हैव टू सी दैट, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन अपने आप को काबिल बनाओ। काबिल मतलब अपनी साधना, अपनी सेवा, अपनी सत्संग से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप इतना मेच्योर और इतना स्ट्रांग बना लो कि हर डिजायर जो आप चाहो मांगते ही फुलफिल हो जाए। जैसे जैसे आपका डिजर्विंग लेवल बढ़ेगा, आपके डिजायर्स ऑटोमेटिकली फुलफिल होंगे ही होंगे, लोग अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगे लाइफ में, स्ट्रगल नहीं रहेगी। ओके, चलिए, लंबा डिस्कशन थोड़ा लंबा खिंच गया, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अप दैट। आई होप इट वुड बी important ओके and सर, थैंक यू, important थैंक for यू, everybody. Let's acknowledge. Thank you. थैंक यू सर। Yes, और कोई सवाल किसी के? ओके, एक और कंसेप्ट बता देता हूं मैं, जिससे थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगा। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर, जैसे हमने कहा कि सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है बिकॉज ऑफ आवर कर्मास, एंड देयर इज ए यूनिवर्सल लॉस
govern the whole universe, you can understand this in the form of a video game. मान लीजिए बहुत बड़ा वीडियो गेम है, बहुत ही बड़ा, मतलब जो आप समझ सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो गेम आप खेल रहे हैं, ठीक है, 800 करोड़ लोग खेल सकते हैं उसमें, मान के चलिए, करेक्ट। नॉर्मल वीडियो गेम में 3-4 बंदे खेलते हैं, 3-4 बच्चे खेलते हैं, लाइक माय सन वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, हाँ, सारे ये ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, देन दे प्ले गेम। अब उसमें बहुत सारे एक्शंस हैं, हर एक के पास 3 लाइफ टाइम होती है, एंड दे स्टार्ट प्लेइंग द गेम्स। नाउ व्हाट एवर एक्शंस दे डू, वो उस वीडियो गेम के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। यस, यस और नो? यस। उस वीडियो गेम के अंदर जितनी भी एक्शंस आप कर सकते हो, उन सब के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी उसमें प्रोग्राम्ड है। यस, so you can understand God has created this whole universe as a big video game. 800 करोड़ लोग उसमें लॉग इन करके बैठे हैं और अपनी गेम खेल रहे हैं। अगर आप बोलते हो सब कुछ तो पहले से ही प्रोग्राम्ड है, मैं क्या करूं, कुछ नहीं करूंगा, आपके तीनों लाइफ 0 0 0 पे आउट हो जाएंगे, आप फर्स्ट लेवल ही पार नहीं कर पाओगे। पर कोई जम के खेल रहा है, एक ही लाइफ टाइम से उसने 15 लेवल पार कर लिए, दूसरी लाइफ टाइम से 25 लेवल पार कर लिए, तीसरी लाइफ टाइम से उसने 50 लेवल पार कर लिए, तो उसका स्कोर हाई होगा। तो ये जो एफर्ट्स हैं, जो पहले 0 0 पे आउट हो गया, उसके लिए भी तो सेम ही गेम थी, पर उसने पुरुषार्थ नहीं किया, तो उसको प्रारब्ध में 0 मिला, फेलियर और फेल, करेक्ट। जिसने सही ढंग से परफॉर्म किया उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। वीडियो गेम तो सेम ही है। इस वीडियो गेम को आप मैट्रिक्स बोल सकते हो, माया बोल सकते हो, जो उस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और ये जो मैट्रिक्स है वो 3 गुण हैं, तमस, रजस और सत्व। खेलते रहो, कौन से गुणों के साथ खेलना है आपको, जो खेलोगे उसका रिजल्ट ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है आपकी लाइफ के लिए। अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होगा, अभी यहाँ पे आपको विल पावर के साथ फ्री विल थोड़ी सी मिल रही है। जब आप एकदम अल्टीमेट लेवल पे पहुंच जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि वाले लेवल पे, यू विल बी आउट ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन यू विल सी द होल थिंग इज अ गेम, you will see the whole thing, your whole life as a movie, and that is complete freedom, that is free will. Now you have the complete free will. तब तक लिमिटेड है, उस मैट्रिक्स में आपके पास लिमिटेड है फ्री विल। क्यों? क्योंकि all the actions and all the results are already programmed into the video game. कितने लोगों को कंसेप्ट समझ में आया? Making sense? This is Yes, life. sir. Welcome to the matrix. You are the Neo, you can wake up and break the matrix, but you insist that I am क्या था उसमें, जेसन नहीं, क्या नाम था उसका, नियो जो बनता है बाद में, उसका नाम क्या होता है, एंडरसन, ही इज एंडरसन। तो ही इज स्लीपिंग, वो जागा ही नहीं है। अगर फ्रीडम चाहिए, मैट्रिक्स को ब्रेक करना है, माया के जाल से बाहर निकलना है, तो आपको नियो बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी द वेकेंट वन, यू हैव टू बी द चोजन वन, राइट। So with this example, you will be able to understand better पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या है. So all the life situations in this video game, in this life, are prarabdha, and you have the purusharth to handle that and score big. And when you reach the highest level, you will realize I am Brahman. I am the creator of this video game, and you will be out of it. Then you will join the creator and enjoy. And then you can start playing the game again. But the moment you enter the game, you have to follow the rules. इस वीडियो गेम के बाहर कोई कर्मा नहीं है, राइट। जैसे आप अहम ब्रह्मास्मि में पहुंच जाओगे, कोई कर्मा नहीं है, एब्सोल्यूट वर्ल्ड में कोई कर्म नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जब तक इस वीडियो गेम में हो, इस लाइफ में हो, इस बॉडी में हो, आप गेम खेल रहे हो। आप मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो, आप खेल रहे हो। यू फॉलो द रूल्स। All the possible actions you take, all the purusharth you can do are already programmed, and all the prarabdha are already there. That's life. Welcome to the matrix. This is the Yoga Vaisheshya wisdom, Niyati. Any questions? Raise your hands. You can have a discussion.
आज का ज्ञान इतना ही था, वैसे टाइम भी हो गया काफी। यस, हाउ मेनी ऑफ यू रियली गॉट अ जोल्ट? कितने लोगों को थोड़ी सी झटका लगा सुन के? वैसे मैं बोल चुका हूँ ये सब सर पहले भी, लेकिन कभी कभी आई रिपीटिशन अच्छा होता है। हाँ गुंजन, यस गो एहेड, यू वर वांटिंग टू शेयर। मैंने तो सर सबसे पहले ही बोला था द अल्टीमेट ट्रूथ, तो आपने कहा नहीं है ये यू अल्टीमेट ट्रूथ आप बोल सकते हो ना, पहले कहाँ से बोल दोगे? हाँ पिक्चर शुरू ही हुई, आप एंडिंग सीन सुना रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। पिक्चर पूरी देखो फिर बोलो एंडिंग सीन क्या है। यस सर, ओके, सर वेरी गुड। जो बच्चा जल्दी जल्दी करो। ओके, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, विवेक बोल रहा हूँ। हाँ जी विवेक। जो बच्चा अपने, जैसे वो 3 बच्चे हैं, फादर के पास जाते हैं, मांगते हैं। जो बच्चा मांगता है, ठीक है, वो और अपने कर्म बंधन में और बनता जाता है। जो नहीं मांगता वो कर्मों से बाद में आगे फ्री हो रहा है अपने अपने, जैसे आपने बोला कि अपने पुरुषार्थ से वो सही कर रहा है। अगर वो कुछ नहीं मांग रहा है तो उसको अपने आगे कर्मों में नहीं बनना पड़ेगा। यू विल नॉट इनवाइट फ्यूचर बैड और इल कर्मास। Yeah, if you जो don't मांग do रहा any karma, you will remain at level 1, 0, 0, 0 score. You have है, to do karma. You have to reach the highest level and then go through the matrix. You can't go cross the matrix at the 0 level. तो पर अगर वो अगर वो मांग रहा है तो कहीं ना कहीं वो बंध रहा है ना उस मांगे या ना मांगे, आप पैदा हो गए हो इस शरीर में तो आप ऑलरेडी बंध गए हो। यू आर ऑलरेडी बाउंड बाई कर्मा। इस कर्मा से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, मूलाधार से नहीं निकल सकते, सहस्रार से ही निकलना। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लोअर कॉन्शियसनेस से नहीं निकल सकते। आपको हायर कॉन्शियसनेस में, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में अहम ब्रह्मास्मि रियलाइज करने के बाद ही फ्रीडम मिलेगी कर्मा से। हाँ मतलब फादर से, फादर को ही मांगना है, फादर की चीजों को नहीं मांगना, यही कह रहे हैं ना? फादर बनने के लिए पहले फादर से चीजें मांगनी पड़ेंगी ना, आगे बढ़ने के लिए। तो ये क्यों कहते हैं अगर जैसे गुरु से कि मुझे, मतलब नॉर्मली तो यही कहा है कि गुरु का साथ मिल जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए। हाँ, गुरु का गुरु से आशीर्वाद कुछ क्यों? गुरु किसके प्रतिबिंब है? परमात्मा का प्रतिबिंब है। गुरुर परमात्मा। ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, करेक्ट। तो वो क्या यस दे रहे हैं आपको? आपको सही रास्ता दिखा के तो तथास्तु ही तो बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं? जी। तो भगवान के नियम आपको समझा रहे हैं गुरु। गुरु का एक ही हाँ काम है, आपको सही रास्ते पे दिखाना, करेक्ट। जी। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकते। तो आप भगवान से मांगो या ना मांगो, ग्रेटिट्यूड में तो रहना ही पड़ेगा ना, तथास्तु तो लेना ही है, वरना आपके कर्म मैनिफेस्ट नहीं होंगे। तो मांगना क्या सही है? जो भी आपके डिजायर्स हैं उसको मांगो, लेकिन ग्रेटिट्यूड के साथ। अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना तो और साधना करो। यही तो बताया अभी। जी। आप शुरू से थे सेशन में। हाँ सब शुरू से थोड़ा 10 मिनट बात आया। हाँ, तो ये हमने डिस्कस किया है ना, अब दोबारा रिकॉर्डिंग देके समझ में आ जाएगा। ओके। करेक्ट। कर्म करने ही पड़ेंगे, डिजायर्स पूरे करने ही पड़ेंगे। बिना डिजायर्स को फुलफिल किए आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, कितने लोगों को मालूम है ये? यू हैव टू इन्वॉल्व इन द डिजायर्स एंड गो बियॉन्ड इट। पहले आपको इन्वॉल्व होना है और फिर आपको बाहर निकलना है। बिना इन्वॉल्व हुए नहीं कर सकते। इसीलिए पुरुषार्थ के 4 बोलते हैं ना, 4 पिलर्स जो हैं पुरुषार्थ के, क्या हैं? फर्स्ट इज डिजायर्स, काम। सेकेंड इज वेल्थ, अर्थ। देन धर्मा, एंड देन मोक्ष। सीधा मोक्ष में नहीं जा सकते ना, पहले एक्सपीरियंस तो करो। वेल्थ को एक्सपीरियंस करो, रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस करो, गृहस्थ जीवन एक्सपीरियंस करो, फिर वानप्रस्थ जाओगे और फिर संन्यास जाओगे। और ये सब काम अगर आप पिछले जन्म में कर चुके हो तो इस जन्म में शुरू से ही आप आगे बढ़ सकते हो। 5 year old Shankaracharya can be born, correct, but for that you have to still do the practice and all the efforts in the last birth. पहले से तैयारी करके आओ। जैसे कुछ लोग अंबानी के घर में पैदा होंगे अभी, हाँ, शादी अभी हुई है, बहुत ही लग्जूरियस लैविश मैरिज हुई है। अब जो सोल वहां पैदा होगा उसके कर्म कितने अच्छे होंगे बोलो? Materialistically yes, but spiritually you never know. Get my point? So जहां पे भी आप हो वहां से आपको स्पिरिचुअल जर्नी अपनी आगे ही लेके जानी है विथ अवेकनिंग। दैट इज द चैलेंज एंड दैट इज द प्रॉमिस एंड दैट इज द विजडम।
ये है योग वशिष्ठ विजडम में नियति की डेफिनेशन. Okay, I hope I am clear. Anything that is not clear? Anybody who has any question, please go ahead. Yes, Sanjeev, you want to share? Shashi, one question is opening up from Vivek's point. I have found a very valid point कि 3 बच्चों में से अगर एक बच्चा नहीं मांग रहा है, सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि वो एक्चुअली में क्रिएटर लेवल तक जाकर अब वो गेम खेलने आया तो उसको कुछ नहीं चाहिए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है. यस, इसीलिए मैंने कहा ना, वो पॉइंट इसलिए मैंने जोड़ा है यहाँ. अगर पहले Exactly. जन्म में आप पिछले जन्म में सब मेहनत करके आए हो, तो वो 5 साल में सब बच्चे मांग रहे हैं, वो सिर्फ स्माइल करके हम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं. देन यू अंडरस्टैंड, ही इज ए एनलाइटेंड सोल. So 14 years what I में understand, नहीं मांगने का 2 रीजन है. या तो आप उसको कंप्लीट करके आए, यू डोंट नीड इट, यू आर डन, और यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर द लेवल 0 राइट नाउ. 2 ही चीजें हो सकती हैं. Am I right? correct. Either he is too scared if he is not asking his father. See, बच्चा will never have any problem with asking the father. वो तो चढ़ के गोद में चढ़ के बैठ जाएगा, सर पे चढ़ के बैठ जाएगा, कंधे पे चढ़ के बैठ जाएगा और बाल खींचेगा. ये सब तो बच्चा करता ही है. तो बच्चे की नेचुरल टेंडेंसी है टू आस्क फ्रॉम फादर और टू जंप अराउंड हिम एंड कीप बॉक्सिंग हिम टिल ही प्रिटेंड्स टू बी डिफीटेड. वो तो खेलेगा ही खेलेगा ना, बच्चा तो पापा के साथ खेलेगा ही खेलेगा. बात नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो वो हम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं, या वो बोल रहे हैं नोबडी लव्स मी. दोनों एक में मास्टर है और एक में 0 लेवल पे है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इज ही डूइंग दैट. क्यों बात नहीं कर रहे हैं? I admire Vivek's question. Lovely. That's a lovely question. Yes, Although Vivek, very good. Actually, you opened up a lot of questions and inquiry. So good. So acknowledge एंड Vivek. सर अगर ये 5 साल में ना हो तो 40 साल के बाद हो फिर तो. कभी भी हो सकता है. 5 साल तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अर्लीस्ट इज 5 years. We say that. ओके. Correct. तभी वो यस बोलना सर. शुरू करता है, तभी वो कुछ. और कई लोग हैं जो पिछले जन्म की सारी विजडम लेके पैदा हुए हैं. पैदा होते ही दे नो वेदास, वेदांतास एंड उपनिषद्स एंड एवरीथिंग. बहुत केसेस हैं ऐसे. So you have to understand. Some are evolved souls and they have come back to teach people. आदर्श, हर अवतार यही सिखाने आते हैं ना कि कैसे एक आदर्श जीवन जिया जाए. लोगों को कुछ सिखाने आए हैं, तो वो दे विल गो थ्रू दैट. वो प्ले एक्टिंग नहीं कर रहे हैं. डोंट मिसअंडरस्टैंड कि वो प्ले एक्टिंग कर रहे हैं. दे आर हियर टू टेल द पीपल हाउ टू लिव योर लाइफ. करेक्ट. इन स्पाइट ऑफ द टफ सिचुएशंस, हाउ कैन यू stick to your values, do great purushart and become a master of destiny. That is what they're up to. All right, very good. Let's acknowledge Vivek ji, Sanjeev and Gunjan ji. Yes. Anybody else who wants to share? Amit ji, any last words if you want to say? Pushpa ji, pranam, namaskar. Sushil Jain ji, anything you want to share? Baljinder, Dharmendra ji, what are you taking away? Anybody wants to share? How was the session? What are you taking away? जिन्होंने शेयर किया उनका तो मेरे को पता लग गया. जिन्होंने शेयर नहीं किया कुछ बोलना चाहेंगे? Okay, silence. A lot of introspection is going on, I suppose. So think about it and we can definitely. Yes, Aniruchi, go ahead. Mute पे हैं आप. सर इसका जो मैंने ये सोच रहा था कि कहाँ पहुंचना है, किस स्टेज पे पहुंचना है, तो वो स्टेज जो आप जैसे आजकल ये लगता है वो स्टेज है जहां हमें गॉड से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े. जब आप गॉड बन जाओगे, वो तो जो ऊंची बात है, वही जब ऊंची आप बात, वही सबसे ऊंची बात, वहीं पहुंचना है. कि गॉड से मांगने की हमें अपने लिए कोई जरूरत ना पड़े, और तब आप वहीं पहुंच मांगे गए तो ना. तब आप वहीं पहुंच गए. When मांगे you तो know दूसरे God, when you know God, you become God. Take this line. If you have fully मांगे realized God, you have become God. And मांगे if you have भी तो not दूसरे, become God, you have not realized it. Keep working. अगर मांगते हैं तो दूसरे के लिए मांगे, तो दूसरे के लिए तो मांग सकते हैं ना सर? नहीं, तो वो भी नहीं जो है. मर्जी करिए सर, जो मर्जी करिए. अल्टीमेटली आपको you have to believe and you have to become God. When you reach that point, then you can say हम ब्रह्मास्मि, हम यही तो बोल रहे हैं, I am divine, I am God. उसमें ईगो नहीं है. अगर आप ईगो है समझ रहे हैं तो आप बहुत बहुत नीचे से बात कर रहे हैं. When you realize you are divine, you become divine. When you realize God, you become God. Look at it that way.
then तो things उस will be स्टेज clearer. में जब इफ वी आर गॉड, उस स्टेज में फिर गॉड से तो जब हुई तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। आप ही गॉड हो सर, आपसे अपने आप से क्या मांगोगे? ओके सर, थैंक यू। वही ओके तो मैं सर, बता रहा हूँ, when you समझ गया realize सर। God, you become God. ओके सर। Yes. All right, very good. Let's acknowledge अनिरुद्ध जी. सर सोचिए, आप शशि, ऑलरेडी, हाँ अनिरुद्ध जी के क्वेश्चन पे एक और पॉइंट फिर थोड़ा सा आ रहा है। अगेन वांट टू गेट ए क्लैरिफिकेशन कि जब आप नहीं मांग रहे हो एंड यू आर नॉट गॉड, सो कैन आई से वन इज स्टक इन द ईगो स्टेट? कुछ भी हो सकता है, assumptions करना ठीक नहीं है. You could Ego be, state- जैसे मैंने बताया, दोनों स्टेज हो सकते हैं, या तो टोटली ईगो में है या वो टोटली मास्टरशिप के लेवल पे है. हाँ, वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर गॉड नहीं है, सो जो 3 ईगो स्टेट होती है, चाहे चाइल्ड हो, पेरेंट हो, एडल्ट हो, किसी ईगो स्टेट में ही अटक के नहीं मांग रहे हो। बिल्कुल. अदरवाइज बच्चे का काम तो हाँ. मांगना ही है, नहीं तो दैट्स पूरे व्हाट आई हक से अंडरस्टैंड। मांगोगे ना. एब्सोल्युटली, शिवानी बोलती है ना, दिस इज आप द रियलिटी। मास्टर सर्वशक्तिमान हो. You are the यस, son of बट God. Jesus Christ used to say that, I am the son of God. Yeah. And the father and the son are same. That means what? I am God. सर जब गॉड से नहीं मांगना है तो ईगो से निकल कर भी क्या हम गॉड से कुछ नहीं मांग सकते? जरूरी नहीं कि ईगो में रहेंगे, आपको ईगो के मांगना बाहर क्यों आके। है सर? आपको मांगना क्या है? क्यों मांगना है? आप जो बोलोगे वो हो जाएगा ना. हाँ वही तो जरूरी, तो ईगो से बाहर रहकर भी हम आ सकते हैं कि गॉड से कुछ ना मांगे। हाँ, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. यही मैं कह रहा था, वो दैट इज द राइट स्टेट। No, that is not the right stage. Final stage is I am God, and when you say something, it will happen. जब आप बोलोगे let there be सतयुग, there will be सतयुग, ये पावर आनी चाहिए, तब आप डिवाइन हो. सर आज अभी दुनिया में किसी के पास पावर आई है ये वाली? आइए ना, किसके पास? सोचिए, जितने अवतार हैं सबके पास ही ये पावर. तो उस समय तो सतयुग आया नहीं, जब प्रॉफिट हुए वो हैं पैदा। सिखाने के लिए आई इवन थी ना. राम के जमाने में भी सतयुग नहीं आया था। आ गया था, राम राज्य नहीं इसी को सर, बोलते हैं. द्वापर था, कृष्ण के समय में भी तो बड़े सर गलत काम होते थे। समझिए, युग इस टाइम का पैसेज नहीं है, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है. कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, टाइम के पैसेज की बात नहीं हो रही. अब आपको क्या लगता है, एक बार कलयुग आ गया तो अब सतयुग दोबारा नहीं आएगा? सतयुग इज ए कॉन्शियसनेस, टाइम तो आगे ही बढ़ेगा ना. अब 2000 के बाद दोबारा 1000 एडी थोड़ी ना आएगा. सर सतयुग आएगा तो लोगों से आएगा, प्रॉफिट तो लोगों को गाइड करेगा। नहीं सर, आई एम सर रॉन्ग। जो भी है, आप समझिए बात को, टाइम तो आगे ही बढ़ेगा ना. 2000 के बाद 3000 एडी ही आएगा, 1000 एडी हाँ तो जी, नहीं आ सकता ना. लेकिन जहां तक कॉन्शियसनेस मैं, में सतयुग आ सकता है ना, आ सकता है. प्रॉफिट का काम है, गुरु का काम है लोगों को गाइड करना। बिल्कुल अब है. उसको वो गाइड कर, उसकी गाइडेंस मानता नहीं मानता ये तो लोगों को देखना। मानेंगे तो सतयुग आएगा, नहीं मानेंगे तो यहीं रहेंगे। नहीं आप सर, सतयुग में ओके जाने के लिए तैयार हैं, आप जाइए, आपके पीछे बहुत लोग आएंगे. ओके। आपको लेके जाना, आप गाड़ी का डब्बा मत बनिए, आप इंजन है. 100 डब्बे पीछे डालिए और लेके जाइए सबको सतयुग में. करेक्ट? मेकिंग सेंस? All right, let's come to the end of the session now. Thank you very much for your participation, and I hope this session was valuable to all. So let's acknowledge everybody for the participation. Very good participation, very good questions, and thank you Anirudh ji for wonderful questions, and Vivek Walia ji also for wonderful questions, and of course Sanjeev and Amit for their contribution. So thank you very much. We will meet again next Wednesday with a new topic. Till then, Aham Brahmasmi. हम ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मास्त्र। थैंक यू। Take Thank you, care. Ji. Bye bye. Thank you थैंक यू very जी, much. बाय बाय Thank you. बाय बाय बाय।